famine, when you learn to sow, you will reap 100-fold. Nothing that you do counts for the faithfulness. And that was the key that he had that unlocked the door, because in that opportunity he got exactly double for what he lost. Every time you are in the wilderness, you are never able. And I brought you here because I want to do something. God is able, and He will never fail. He is Almighty God, greater than all we seek, greater than all we ask. He has done great things. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. The purpose of our ministry is to equip, to encourage, to build and to share the gospel around the world. As Jesus said in Matthew 28, He said, go into all the world and share the gospel by the power of my Holy Spirit, and I am with you always to the end of the age. Mighty God will call them what is great within them. We will take initiative to lead and to guide, and to from like a seed mustard seed ministry that may grow into the plant and to the tree and the forest. I'm telling you, this ministry is going to be a large ministry, that God's going to give you a goal to plant 100 churches there. It's the very heart of God to reach out to the millions of the dying people around the world, the hungry and the broken. And we are right here to equip them with the word of God. God has something in store for this church as a whole. We see new seasons coming and we see new birthings happening, because I know there is a window that's opened in the spiritual atmosphere over this church where things are going to prosper, where things are going to be accelerated into their destinies. Lift it up. In His name we overcome. For the Lord our God is able. Lift it up. He defeated the grave, raised to life. Our God is able. In His name we overcome. For the Lord our God is able. For the Lord our God is able. For the Lord our God is Oh Lord, we worship you, we adore you. प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं और हम आपसे प्रेम रखते हैं. We thank you that you're already in this place, Lord हम Jesus. धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, आप यहाँ पर मौजूद हैं. Holy Spirit, we ask you to continue to have your way right now. पवित्र आत्मा, हम मांगते हैं कि आपकी इच्छा इस समय हमारे संगति में पूरी हो जाए. As we felt your presence in this meeting, And जैसे हम आपकी उपस्थिति को मौजूद पाते हैं इस समय, don't leave us, Lord Jesus. प्रभु यीशु हमें छोड़िए मत. Hallelujah. हालेलुया. So tonight I want to talk about the breath of God. आज रात हम आपसे परमेश्वर के श्वास के बारे में बात करना चाहते हैं. As I said before, I believe that the Lord is going to breathe into your situation.
जैसे हमने पहले भी कहा था और फिर आप कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति में एक नई श्वास भरने वाला है। You know, I love the Bible. क्या आपको पता है कि मैं पवित्र वचन से प्रेम करती हूँ? If you read the Hebrew translations, अगर आप अलग अलग वचनों को पढ़ते हैं, it gives us a deeper understanding तो हम वचनों को एक गहरे तरीके से समझ पाते हैं। of who God is, परमेश्वर कौन है, of who the Holy Spirit is, पवित्र आत्मा कौन है and of who Jesus is. और प्रभु यीशु मसीह कौन है। You know, we just sang tonight. आपको पता है हमने आज रात को वही गाया। God has so many different names in the Bible to help us understand His character. परमेश्वर को इतने सारे नाम दिए गए हैं पवित्र वचन में, जैसे हम परमेश्वर को स्वभाव को और अधिक और अच्छी तरह से पहचाने। His name is Yahweh. परमेश्वर का नाम यावे है। His name is Elohim. परमेश्वर का नाम एलोहीम है। Jehovah Jireh, my provider. यहोवा ये मुझे देने वाला। Jehovah Shalom, my Prince of Peace. यहोवा शलोम मेरे पर शांति का राजा। El Shaddai. एल शदाई, God is great. परमेश्वर महान है। And there's so many different names for God. इतने सारे नाम परमेश्वर के लिए, And it gives us a deeper understanding of His character. और जब हम ये सब नाम को सुनते हैं तो हमें परमेश्वर के स्वभाव के बारे में और अधिक तरीके से पता चलता है And His ways. और परमेश्वर के तरीकों को हम पहचानते हैं। Jesus is the truth, the way, and the life. प्रभु यीशु सत्य है, मार्ग है और जीवन है। He is the light. प्रभु यीशु दीपक है। He's baptizer, savior. प्रभु यीशु हमें बपतिस्मा देते हैं, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। Healer and our coming King. वो हमारा चंगाई देने वाला परमेश्वर है और जल्दी से आने वाला राजा है। And there's so many more names for God and for Jesus. और परमेश्वर के लिए और प्रभु यीशु के लिए वचन इतने सारे नाम और भी है That we could study to help us understand Jesus and God more. जिसे हम परख सकते हैं, जानकारी पा सकते हैं, जैसे हम परमेश्वर के बारे में और जाने। And there are many pictures given in the Bible to help us understand the Holy Spirit. और पवित्र वचन में बहुत सारी कहानियां दी गई है, जैसे हम पवित्र आत्मा के बारे में और जाने। He's described as a dove. पवित्र आत्मा कैसे दिखलाया जाता है? एक कबूतर के समान, As oil. और तेल की तरह, As fire. एक अंगारी की तरह, As a seal. A seal. एक छाप की तरह, And many different other illustrations like water, wind. और पवित्र आत्मा को हम इस तरीके से भी जान सकते हैं, एक पानी की तरह और वर्षा की तरह और एक हवा की तरह। We sang tonight, it is raining. आज रात हमने एक गाना गाया कि वर्षा आ रही है। The Lord said, I will pour out my spirit upon all flesh. प्रभु ने यह कहा कि मैं हर एक आत्मा पर और हर एक इंसान पर मेरी आत्मा को उंडेलूंगा। So He rains upon us. तो हम ये जानते हैं कि परमेश्वर हमारे ऊपर वर्षा कर रहा है। But tonight I want to talk about the breath of God. लेकिन आज रात हम प्रभु परमेश्वर के श्वास के बारे में बात करना चाहते हैं। About the ruach, और जिसे हिंदी में और हिब्रू के अक्षर में रूआ कहते हैं। the wind. जो हवा है। Hallelujah. हालेलुया। Now we know if we go to Genesis 2:7, हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 2 अध्याय 7वां वचन। the Bible tells us that God created Adam out of the dust. यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम को बनाया रेती से। We are created in God's image. हम सब परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। Yet He created Adam out of the dirt of the earth. हाँ, यह सच है कि परमेश्वर ने आदम को इस मिट्टी से बनाया था। Therefore, we come from the dirt of the earth. और हम सब इस रेती से बनाए गए हैं। Yet we are created in God's image. और फिर भी हम इस गंदगी से बनाए गए हैं, लेकिन हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। Hallelujah. हालेलुया। And the Bible says that God formed Adam out of the dust of the earth. और वचन कहता है कि परमेश्वर ने आदम को इस पृथ्वी की रेती से बनाया। And He breathed the breath of life और परमेश्वर ने उसी आदम के अंदर अपनी श्वास भरी into his nostrils. और उसके नाक के अंदर, And Adam became और आदम बन गया a created being, a human being. एक जीता हुआ इंसान। So,
Can you imagine? We're formed out of the dirt of the earth. क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि आप और हम इस रेती से बनाए गए हैं, इस पृथ्वी में जो रेती है जमीन पर, Yet the breath going through our bodies from the breath of God. और फिर भी परमेश्वर ने अपनी श्वास हमारे अंदर डाली है। Before you know Jesus as Lord and Savior, इसके पहले कि आपने परमेश्वर का उद्धार पाया, really your spirit is dead. इंसान की जो आत्मा है मरी हुई है, We are dead to sin. और हम पाप में मर चुके हैं। But when we accept Jesus into our life, परंतु जब हम प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में स्वीकार करते हैं as Lord and Savior, हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में, when we believe that He died on the cross और हम ये विश्वास करते हैं प्रभु यीशु ने अपनी जान हमारे लिए क्रूस पर दे दी and He rose again और फिर वह तीसरे दिन उनका पुनरुत्थान हुआ for our sins, और हमारे पापों के लिए we confess हम जब कबूल करते हैं and we invite Him into our life. और जब हम अपने जीवन में हमारे हृदय में प्रभु यीशु को स्वागत करते हैं, The Bible says that we are born again. वचन कहता है कि हमें एक नया जीवन मिला है We receive new life. और हमें एक नया जीवन मिला है। Hallelujah. हालेलुया। God breathes afresh into our life. प्रभु यीशु हमारे अंदर एक नया जीवन भरता है। And if you haven't accepted Jesus into your life और yet, आज अगर आप में से कोई है जिन्होंने प्रभु यीशु को अब तक स्वीकार नहीं किया अपने जीवन में, we're going to give an opportunity later हम आपको एक मौका देने वाले हैं बाद में to receive Him into your life प्रभु यीशु को अपने दिल में स्वीकार करने के लिए, so that you can receive new life. जैसे आपको एक नया जीवन प्राप्त हो, You can receive the gift of eternal life आपको अनंत काल का जीवन का तोहफा मिले and you can become born again. और आप फिर एक नया जन्मा हुआ इंसान बदलाए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमीन। So we all know in order to live, we need to breathe, right? और हमें ये पता है अगर हम किसी को भी जीना है तो हमें श्वास लेने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। And I believe that God wants to breathe tonight into your situation. और मुझे ये विश्वास है कि आज रात परमेश्वर आपकी हर एक जन की परिस्थिति में अपनी श्वास भरना चाहता है। I believe that there are many people here tonight मुझे विश्वास है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं where there are situations in your life जिनके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हैं that have stopped breathing. जो बहुत ही संकट भरी परिस्थितियां हैं And because they've stopped breathing, और वो परिस्थितियां में श्वास नहीं है और क्योंकि वह परिस्थिति अभी मर चुकी है, they have died. वह मर चुकी है। Now this could be anything like your marriage, और यह कुछ भी हो सकता है, आपका व्यापारिक जीवन, any situation in your home, कोई भी परिस्थिति जो आपके परिवार में है, any situation in your family, कोई भी परिस्थिति आपके परिवार में या उनके लोगों के बीच में, situation with your children, आपके बच्चों के जीवन में, with your finances, आपके पैसों के मामले में, with your health. आपके सेहत के मामले में, You've given up hope. और आपने आशा दे निराश हो गए हैं, You've lost your joy. आपकी आनंद मर चुकी है, You've lost your peace. आपकी शांति अभी अब नहीं रही, Or even your dreams have died. और जो भी अपने सपने थे वो भी मर चुके हैं। But I'm here to tell you tonight लेकिन आज रात मैं यहाँ पर आई हूँ आपको बताने के लिए that the Lord is going to resurrect your situation. कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति को पूर्णता करने वाला है। Hallelujah! Are you excited? क्या आप खुश हैं? Are you ready to receive? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर की? Do you believe that the Lord can resurrect your situation क्या tonight? आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपकी परिस्थिति को फिर एक नई दिशा देगा? Do you believe? क्या आप विश्वास करते हैं? God wants to hear you say you believe. परमेश्वर आपको सुनना चाहता है। Because if you believe, क्या आप विश्वास करते हैं? you can receive. क्योंकि अगर आप विश्वास करेंगे तो आप पाओगे। The word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, if you believe in your heart अगर आप अपने दिल में विश्वास करोगे and you confess with your और mouth अपने ज़बान से कबूल करोगे that Jesus died and rose again, कि प्रभु यीशु मरा और फिर वो जी उठा, you will be saved. और आपको मुक्ति मिलेगी। So if something as simple as believing और अगर ऐसी साधारण सी चीज है, सिर्फ हमें विश्वास रखना है and confessing और ज़बान से कबूल करना है can save you, और बस यह करके आप बच जाओगे और आपको मुक्ति मिलेगी। if you believe in your heart तो अगर आप विश्वास करोगे and you confess with your mouth और अपने ज़बान
ईमान से कबूल करोगे that the Lord is going to resurrect your situation tonight, प्रभु यीशु आपकी परिस्थिति को एक पूर्ण स्थान करने वाला है only you know what your dead situation is. और सिर्फ आप ही जानते हो आपकी परिधि And the पर Lord knows. और परमेश्वर जानता है। So do you believe? तो क्या आप विश्वास करते हो? So as you confess and you say, yes, I believe, अगर आप विश्वास करते हो, आइए हम सब एक आवाज में कहें, हाँ मैं विश्वास करता हूँ। yes, I give it to the Lord. Hallelujah. The Lord is going to do it tonight. The Lord is going to resurrect things tonight. और परमेश्वर आज रात को सब चीजों को नई करने वाला है। The Lord is going to breathe the breath of life into your situation. परमेश्वर अपनी श्वास आपके परिस्थिति में भरने वाला है And it's going to be resurrected. और वह पूर्ण स्थान पाएगी In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Just like Ezekiel went to the valley of dry bones. वैसे ही जैसे नबी एजिकियल उस खाई में गया था जिसमें सूखी हड्डियां मौजूद थी। The Lord asked him, can these dry bones live? परमेश्वर ने उस एजिकियल से यह प्रश्न पूछा, क्या ये हड्डियां फिर जीवित हो सकती है? And Ezekiel said, only you know, Lord. तब एजिकियल ने परमेश्वर से कहा, परमेश्वर सिर्फ आप जानते हैं। And the Lord told him to prophesy to the dry bones. और परमेश्वर ने एजिकियल को कहा, ये जो हड्डियां तुमको दिखती हैं उसको भविष्यवाणी करो। You need to prophesy to your dead situation. आपको अपने मरी हुई परिस्थिति को भविष्यवाणी करनी चाहिए। You need to speak to your dead situation. आपको अपनी मरी हुई परिस्थिति को बोलना चाहिए उसके Because if you have faith क्योंकि अगर आपको विश्वास है and you believe, और आप विश्वास करते हो you can speak to your mountain तो आप उस पर्वत से बात कर सको and it will be removed. और वह पर्वत हट जाएगा। You can speak to your dead situation आप उस मरी हुई परिस्थिति से बात करोगे and it will be resurrected. और उसे पूर्ण स्थान मिल जाएगा। He said to Ezekiel, prophesy to the dry bones. परमेश्वर ने एजिकियल से कहा, उस हड्डियों से भविष्यवाणी करो। And he said, dry bones, this is what the sovereign Lord says. और एजिकियल ने उस हड्डी से कहा, हड्डियां सुनो, परमेश्वर के वचनों को सुनो। I will cause breath to enter you और परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे अंदर अपनी श्वास भरूंगा and you will come to life. और तुम जीवित होगे। Tonight the Lord is going to cause breath to enter your situation आज रात परमेश्वर आपकी परिस्थिति के अंदर अपनी श्वास भरने वाला and है it's going to be resurrected. और आपकी परिस्थिति जी उठेगी। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। Every knee shall bow हर एक झुका दिखेगा and every tongue confess और एक हर ज़बान कबूल करेगी that Jesus Christ is Lord. कि यीशु मसीह परमेश्वर है। When he died on the cross, जब वह क्रूस पे अपनी जान दे दी, he made a public spectacle उस पूरी जनता के सामने प्रभु of ने all the powers of darkness. और सब जो बुरी ताकतें हैं And he said, it is finished. और उसने सब लोगों के सामने कबूल किया, संपूर्ण हो चुका है। You see, when Jesus died on the cross, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मरे थे, he laid his life down. परमेश्वर ने अपना जीवन बलिदान दे दिया था। For God so loved the world that he gave his only begotten Son. परमेश्वर ने पृथ्वी से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे भेज दिया इस जीवन में, That whoever believes in him ताकि जो कोई उस पर विश्वास रखेगा may have the free gift of eternal life. और उसे अनंत काल का जीवन मिलेगा। So when they crucified Jesus on the cross, जब उन लोगों ने प्रभु यीशु को क्रूस पर मारा था, for your sake and for my sake, आपकी वजह के लिए और मेरे लिए, he took on all the sin of the earth. प्रभु यीशु ने इस पूरी धरती और पृथ्वी के पाप अपने ऊपर ले लिए He took on every situation that bothers you. और हर एक वो परिस्थिति जिससे आपको संकट और तकलीफ होती है, हर एक वो तकलीफ उन्होंने अपने कंधों पर उठाई। The word says, by his stripes we are healed. वचन कहता है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिल चुकी है। And as he took it all upon himself on the cross, और जैसे प्रभु यीशु ने हर एक चीज क्रूस पर अपने ऊपर ले ली, he laid his life down प्रभु यीशु ने अपने जीवन का बलिदान and दे he दिया said, it is finished. और उन्होंने कहा उनके आखिरी शब्द संपूर्ण हो गया है। And then they put him in the tomb. और फिर उन्होंने प्रभु यीशु के देह को कब्र में डाला। And on the third day, when the disciples went to look for him, और तीसरे दिन तक जब प्रभु यीशु के शिष्य उसको खोजने गए, they were expecting to see his dead body in और the तब tomb. उनकी उन्होंने सोचा था, कल्पना की थी कि प्रभु यीशु का देह वहाँ पर मौजूद होगा। But when they turned up, लेकिन जब वह वहाँ तरफ पहुँच गए, the tomb was empty. कब्र खाली था। They saw the cloth lying there, उन्होंने प्रभु यीशु के जो वस्त्र उसके ऊपर डाले गए but Jesus wasn't lying there. कपड़े थे, लेकिन प्रभु यीशु नहीं था। And Mary was crying at the tomb because it was empty. और वो वहाँ पर रो रहे थे, मेरी रो रही थी क्योंकि वहाँ पर खाली था कब्र। And she saw two angels, one at the head and one at the foot. और तब मैरी
तरफ। And they said to her, woman, why are you crying? और तब स्वर्गदूत ने मैरी से यह प्रश्न किया, मैरी तुम क्यों रो रही हो? And she said to them, और तब मैरी ने ये जवाब दिया, they've taken my Lord and my Master and I don't know where he is. उन सब लोग ने मेरे प्रभु यीशु के देह को लेकर गए हैं, मुझे पता नहीं वो कहाँ है। If you know where he is, please tell me where he is and I'll go and get him. और मैरी ने यह कहा उन स्वर्गदूत से, क्या आपको पता है प्रभु यीशु कहाँ पर है? अगर आपको पता है तो मुझे बताइए, मैं वहाँ पर जाके उनको लूंगी। Because Mary loved Jesus so much. क्योंकि मैरी प्रभु यीशु से बहुत प्रेम करती थी। He touched her and he turned her life around. प्रभु यीशु ने मैरी के जीवन का परिवर्तन कर दिया था। And then there was somebody behind her. She thought he was the gardener. और कोई उसके पीछे वहाँ पर ठहरा था और वह समझी कि वह जो बगीचा रखने वाला है वो है। And she said to him, if you've taken my master, tell me where it is and I'll go and get him. और तब मैरी उसे कहती है, जो बगीचा रखता है, वो कहती है कि क्या तुम्हें पता है प्रभु यीशु कहाँ पर है? And then he called her और तब उस आदमी ने मैरी को by her पुकारा name, Mary. और प्रभु यीशु ने उसको पुकारा और कहा मैरी। And she saw that it was Jesus. और तब मैरी अचंभा होके उसने देखा कि वह प्रभु यीशु मसीह खुद थे, Because his sheep know his voice. क्योंकि उसकी जो भेड़ है उसकी आवाज को पहचानते हैं। You see, they didn't understand that Jesus had to rise again. अब समझिए कि तब उसके शिष्यों को ये समझ में नहीं आया था कि प्रभु यीशु का पुनरुत्थान होना जरूरी है। Jesus laid his life down. प्रभु यीशु ने अपना जीवन हमारे लिए बलिदान किया। Death could not hold him captive. जो मौत थी उस पर काबू ना पा सकी। Death didn't kill Jesus. मौत ने प्रभु यीशु का मृत्यु नहीं किया। But Jesus laid his life down प्रभु यीशु ने खुद स्वयं अपना जीवन हमारे लिए दे दिया and he had the authority to pick it back up again. और प्रभु यीशु को इतना अधिकार था कि अपना जीवन वो वापस पा सके। Hallelujah! हालेलुया। The tomb was empty. कब्र खाली था। Jesus was resurrected. प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हो चुका था Because Jesus had the authority to lay his life down and pick it back up. क्योंकि प्रभु यीशु को यही अधिकार था। उसने अपना जीवन नहीं बलिदान किया, लेकिन फिर उसने अपना जीवन वापस भी दिया। And when you accept Jesus into your life, और जब आप प्रभु यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हो, Lord and Savior, आपका उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में, he comes into your heart to live. वो जब आपके हृदय के अंदर आता है जीने के लिए, He comes into your heart to stay. वो आपके हृदय के अंदर आता है रहने के लिए, The Holy Spirit fills you up. पवित्र आत्मा आपको भरपूर करती है। And the same Spirit और वही आत्मा that raised Jesus from the dead जिसने प्रभु यीशु का पुनरुत्थान किया था, comes to live on the inside और of you. वही पवित्र आत्मा आपके अंदर आके जीता है। So in the name of Jesus, तो यीशु मसीह के नाम से we have authority. हम सबको अधिकार है। In the name of Jesus, यीशु के नाम से demons have to flee. दुष्ट आत्मा को दौड़ना पड़ेगा। In the name of Jesus, यीशु के नाम से any situation that you're going through, हर एक परिस्थिति जो आपके जीवन में है, anything that is dead in your life, हर एक चीज जो आपके जीवन में आपको हमला कर रही can है, be resurrected जो मर गई है, हर एक वो चीज पुनरुत्थान हो सकता है in उसका। the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से As you pray, जैसे आप प्रार्थना करोगे, as you give it to Him, जैसे आप उसके हाथों में as you अर्पण करोगे, trust Him with your situation, जैसे आप उस पर विश्वास करोगे, as you do not move, as you stand firm on the जैसे promises of आप God, स्थिर रहोगे परमेश्वर के वचनों पर, as you stand on the promises of God, जैसे आप परमेश्वर के वचनों पर खड़े रहोगे, you believe and you give it to the Lord Jesus. जैसे आप विश्वास करोगे और परमेश्वर के हाथों में दे दोगे, The Lord Jesus will breathe the breath of life पर प्रभु यीशु आपके परिस्थिति पर अपना श्वास भरेगा, into your dead situation, आपके मरी हुई परिस्थिति में, and it will be resurrected in the name of और Jesus. फिर और एक बार उसे पुनरुत्थान मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। Hallelujah! Hallelujah! Jubilee! क्या आप विश्वास करते हो? Jubilee! क्या Hallelujah! Are you going to lift it up to the Lord tonight? आप परमेश्वर के हाथों में Are you going to believe and give it to the Lord tonight? क्या आप Hallelujah! विश्वास Are you going to stand on His promises tonight? क्या आप परमेश्वर को विश्वास करोगे आज रात? Hallelujah! Are you going to receive victory in your life tonight? आपको आज रात को एक विजय मिलेगी। आज रात It's not by power. एक पर सामर्थ से नहीं होगा, It's not by might. इंसान की ताकत से नहीं होगा, But by my Spirit, says the Lord. लेकिन पवित्र आत्मा की सामर्थ से कहता है। Hallelujah! That's what God we thank you for. And you know,
appeared to his disciples. और ये कब्रों के बाद जब वह मैरी को दिखाई दिए, उसके बाद प्रभु यीशु को अपने शिष्यों को भी दिखाया अपने आप को, And he breathed on them. और उन पर भी उन्होंने अपना श्वास दिया। And he said, receive the Holy Spirit. और प्रभु यीशु ने क्या कहा कि As he breathed on them. जैसे उन्होंने पवित्र आत्मा भरा उन पर और कहा स्वीकार करो। And all day I've just seen a picture of God just breathing over his people. और बस यहाँ पर एक दृश्य हम देख सकते हैं, परमेश्वर अपने शिष्यों के ऊपर अपनी आत्मा उंडेल रहा है, just breathing his breath of life over his vessel. अपनी श्वास जो जीवन की श्वास है परमेश्वर आप पर उंडेलना चाहता है। Breathing the breath of life into every situation. परमेश्वर अपनी जीवन की श्वास अपनी हर एक परिस्थिति में भरना चाहता है। Hallelujah. हालेलुया। And you know the Lord said to his disciples, he said to his believers, और आपको पता है प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों से क्या कहा था? he said, wait in Jerusalem, और यीशु मसीह ने कहा था, where I'm going you cannot come with me, कहा था कि यरूशलेम में आप टिके रहो, but I will not leave you orphan. क्योंकि जहाँ पर मैं जा रहा हूँ आप इस समय मेरे साथ नहीं आ सकते हो। I will send you a helper. लेकिन मैं आपको त्यागूंगा नहीं, मैं आपको एक मददगार भेजूंगा। He said, when the Holy Spirit comes upon you, और यीशु मसीह ने कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगी, you will receive power. और आपको आत्मा से सामर्थ मिलेगा। When the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा आप पर आएगी, you will receive power. आपको सामर्थ मिलेगा। Hallelujah. हालेलुया। When the Holy Spirit comes upon you, जब पवित्र आत्मा आप पर उंडेली जाएगी, you will receive power. आपको सामर्थ मिलेगा। And on the day of Pentecost, और पेंटिकॉस्ट के दिन पर all the believers were in one place, जो सब शिष्य एक जगह पर मौजूद थे, and they were baptized in the Holy और Spirit. वो सबको बपतिस्मा मिला था पवित्र And there आत्मा were का। tongues of fire on every head, और एक नई आत्मा मिली थी, एक नई जबान मिली थी and they उनको। were speaking in another और language, वो सब लोग एक अन्य भाषा में बात करने लगे, some in a heavenly language, उसे स्वर्गीय भाषा भी कहते हैं, and in different tongues. और अलग-अलग अन्य भाषाओं में। So hallelujah. So हालेलुया। God is breathing into your situation tonight. परमेश्वर आपकी परिस्थिति में आज अपनी श्वास भरना चाहता है। I believe hallelujah. मुझे विश्वास है We give you all the glory and all the praise. परमेश्वर हम आपको सारी गौरव महिमा और आदर देते हैं। You know, God is still in the business of bringing things back to life today. आपको पता है परमेश्वर का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है, एक बिजनेस है, और वो हर एक मरी हुई चीज को अभी जिंदा करने वाला है। He did in the Bible. उन्होंने वचनों में भी किया था। He resurrected Lazarus. आपको याद है प्रभु यीशु ने लाजरस को फिर पुनरुत्थान किया। Lazarus died and Jesus called him back to life. लाजरस मर चुका था और प्रभु यीशु ने उसे फिर जीवित किया। And there was the girl who was dead. और वह छोटी सी लड़की जो मरी हुई थी, And Jesus said, Talitha kum, which means little girl, come, arise. और तब प्रभु यीशु ने उस लड़की को जो पलंग पे सोई हुई थी कहा था तलीता कोमी, इसका मतलब है तुम वापस जी उठो। And as Jesus spoke to the dead girl, और जब प्रभु यीशु ने उस मरी हुई लड़की से बात किया, her spirit entered her body, पवित्र आत्मा ने उसके देह पर उसको पूर्ण स्थान किया, and instantly she rose. और उसी समय वह जी उठी। So God is still in the business of performing miracles today. तो परमेश्वर का कार्य यह अभी भी चल रहा है, वो मरी हुई चीजों को जीवित कर रहा है, Of bringing things back to life. हर एक मरी हुई चीज को वह वापस जिंदा कर रहा है। Not just dead people, सिर्फ मरे हुए लोगों को नहीं, but dead situations. लेकिन मरी हुई परिस्थितियों को भी, Whether that's your health, चाहे वह आपकी सेहत के बारे में क्यों न हो, your marriage, आपके शादीशुदा जीवन क्यों न हो, your finances, आपके पैसों के बारे में क्यों न हो, or any situation in your life. चाहे If you're कोई dead, परिस्थिति हो आपके जीवन में जिसमें आपको आशा नहीं लगी। I trained with a very anointed evangelist, a woman of God. और कुछ साल पहले मुझे ट्रेनिंग मिली थी एक बहुत ही अभिषेक पाई हुई एक परमेश्वर की बेटी की। For 2.5 years. और 2.5 साल के लिए मैं उसके नीचे में सीख रही थी उससे, And I just followed her everywhere she went. और जहाँ पर भी यह गई मैं उसे अगुवाई पा रही थी, मैं उसके तौर तरीके सीख रही थी, जहाँ पर भी गई वो मैं उसका पीछा कर रही थी। And she was like a spiritual mother.
she still is. और वो मेरी एक आत्मिक माँ के समान थी। And it was such a blessing to be under her and to learn from her. और ये बहुत ही आशीर्वाद की बात थी कि मैंने उस औरत से बहुत सारी चीजें सीखी और पाई। And one day she told me a story of how God used her before she was even called into ministry. और एक दिन उस भली औरत ने मुझसे एक कहानी बांटी मुझसे। Before she was a minister of the gospel, इसके पहले कि वो परमेश्वर का कार्य शुरू किया उसने, उसके पहले she was a midwife. वह एक औरत थी जो बच्चों को पैदा करती थी। And she was a very young girl. She was training to be a midwife. और वह बहुत ही नौजवान लड़की थी और वह सीख रही थी बच्चों को कैसे पैदा करना, अभी दूसरे लोगों के लिए एक नर्स के समान। And she delivered a stillborn baby. और उस समय में एक बच्चा जो पैदा हुआ था वह मरा हुआ बच्चा था। The mother had to give birth to the baby that was dead. और जो माँ थी जो बच्चे को पैदा कर रही थी, लेकिन उस समय बच्चा जो जन्मा था वह मरा हुआ बच्चा था। And as my mentor Marilyn, और मेरी जो अध्यापक थी उसका नाम मैरिलिन था, was given the baby with a blanket wrapped around it. और मेरी अध्यापक मैरी के हाथ में वो मरा हुआ बच्चा हाथ में दिया गया था। She went to take this baby into the next room with a blanket over it. और उस बच्चे के ऊपर वह चादर डाली गई थी क्योंकि वो मरा हुआ था, लेकिन उस समय उसने उस मरे हुए बच्चे को दूसरे कमरे में लेकर गई To perform what she needed to do, to make notes or whatever needed to be और जो done. भी वहाँ पर जो कार्य करना था, उसको लिखना था, रजिस्टर में भरना था, वो करने गई। And as she was holding the baby with the blanket over the baby's और face, जैसे वह उस मरे हुए बच्चे को पकड़ रही थी अपने हाथों में, she pulled the blanket back. मैरी ने उस समय उस चादर को हटा दिया था बच्चे के ऊपर, मुख के ऊपर से, And as she pulled the blanket back, और उस चादर को हटा दिया था। the baby came to life with her arms. उस बच्चे में श्वास आ गई। Hallelujah! This is a recorded miracle. यहाँ एक चमत्कार है जो लिखा गया है उस समय से। This is written down. It happened in the hospital. वहाँ पर लिखा गया है और अस्पताल में उसकी जानकारी भी है। People couldn't believe it. लोग विश्वास नहीं कर पाए, But I believe that God resurrected that baby that लेकिन day. मुझे विश्वास है कि परमेश्वर ने उस मरे हुए बच्चे को दिया। And this wasn't that long ago. It was only 30 years ago. और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, कुछ सालों की बात है, 30 साल पहले। I've heard of many stories even recently where God has resurrected the dead. और यह चाहे पुरानी बात ना हो, लेकिन आज के जमाने में भी मैंने बहुत सारी बातें सुनी हैं जो परमेश्वर ने मरे हुए लोगों को जी उठा के पूर्ण स्थान दिया है। But He doesn't just resurrect the dead. लेकिन परमेश्वर से मरे हुए लोगों को पूर्ण स्थान नहीं देता। If He can resurrect the dead, अगर परमेश्वर एक मरे हुए इंसान को पूर्ण स्थान दे सकता है, He can resurrect any situation in our life. वही परमेश्वर किसी भी परिस्थिति को पूर्ण स्थान दे सकता है। Hallelujah. Before I knew Jesus, इसके पहले कि मैं प्रभु यीशु को पहचानती थी, I was dying in my sin. मैं अपने पापों में मर रही थी। I worked in the entertainment industry मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करती थी। as a singer and an actress. मैं एक गायिका थी और एक एक्ट्रेस थी। And even though on the outside everything looked glamorous, और चाहे बाहर से हर एक चीज सुंदर और अच्छी दिखती थी, and I was getting closer to my dream of becoming a rich and a famous movie star and actress, मेरा सपना था कि मैं बहुत अमीर बनूंगी, एक बहुत ही सफल एक्ट्रेस बनूंगी, और ये सब चीज सच्चाई में बदल रही थी। I worked in some Bollywood films and some British films. और मैंने बहुत सारी हिंदी पिक्चरों में भी काम किया है और इंग्लिश पिक्चरों में भी काम किया है। Outside everything looked so great and बाहर glamorous. से सब कुछ सुनहरा दिखता था और सुंदर दिख रहा था, But on the inside, लेकिन अंदर से I was dying. मैं मर रही थी। The closer I got to my dream, जितना करीब मैं अपने सपनों के पास जा रही the थी, more empty I became, उतना मेरे अंदर जो खाई है वो बढ़ती जा रही थी। the more confused I became, मेरा मन तितर-बितर हो गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। the more lost I became, मैं गुमराह हो गई थी and I couldn't understand it और मैं कुछ भी समझ नहीं पाई, because I was getting closer to my dream. क्योंकि मैं सपनों के करीब जा रही थी। I was getting closer to the thing I thought would give me fame. जो कुछ भी मैं चाहती थी इस जीवन से, मुझे सब कुछ मिल रहा था। मुझे शोहरत मिल रही थी और पैसा मिल रहा था, सब कुछ मिल रहा था और नाम मिल रहा था And happiness, और खुशियाँ मिल रही थी and everybody would love me
के आगे मैं बहुत महान थी and I wouldn't be rejected anymore. और कोई भी मुझे नाकारता नहीं था, But I was so wrong. लेकिन मैं इतनी गलत थी Because the closer I got to my dream, क्योंकि जितने करीब मैं अपने सपनों के पास जा रही थी the more I was dying inside. उतना ही मैं अंदर से मैं मर जा रही थी And on the outside, you couldn't see it. और बाहर से आपको कभी नहीं दिखता था Because I was putting on a brave front. क्योंकि मैं आगे से मैंने एक मास्क डाला था, मैं सबको दिखाती थी कि मैं बहुत ही बहादुर लड़की हूँ। I was an actress and I was putting on an act. तो मैं एक एक्ट्रेस थी, तो उस समय भी मैं एक्टिंग कर रही थी And you know, I started to self-medicate. और फिर मैं मैंने अपने अंदर देखना चालू किया I'd go out partying to the VIP clubs, और मैं पार्टी करती थी वीआईपी क्लबों में, बड़ी बड़ी जगहों में, hanging out with the rich and famous. और जो अमीर लोग थे, जो सब लोग को सब कुछ था, And I was offered drugs, और मैंने ड्रग लेना भी शुरू किया champagne and cocaine, और शैंपेन और कोकेन जो ड्रग्स का नाम है, smoking and drinking. और मैं सिगरेट खींचती थी और पीती थी और शराब और नशा करती थी। Sharab, yes. We say living it up in the UK. We were living it up, we say in the UK. और हर एक चीज में मतलब जी रही थी पूरी तरह से। But really I was self-medicating. और मैं अपनी दवाई खुद ले रही थी Because the hurt that I was feeling inside, क्योंकि जो दर्द और जो मुझे तकलीफ हो रही थी मेरे भीतर, and the pain that I was feeling inside, और जो दर्द मुझे महसूस हो रहा था अंदर की तरफ, अंदर मेरे दिल के अंदर, I would drink the alcohol and take the drugs. मैं शराब पीती थी, ड्रग्स लेती थी, And for 5 minutes, it would numb the pain. और 5 मिनट के लिए मेरे दर्द को, मेरे जो अंदर जो दर्द था उसे सुन कर देता था। But it wouldn't last long. लेकिन वह कुछ ही समय के लिए था। The more I took, जितना मैं वो लेती गई, the more I had to take. और जितना मैंने लिया उतना और मुझे लेना पड़ा, Because the more I took, क्योंकि जितना मुझे लेना था, the quicker the drink and the drugs would wear off. और जो शराब खत्म हो जाता था और ड्रग्स का जो असर है वो भी खत्म हो जाता था, And I was becoming addicted. और मैं उसमें बंध गई। And a prisoner, एक बंधन की तरह मेरे ऊपर हो गया, और मैं एक जैसे एक जो कटोरे के अंदर होता है, एक जेल के अंदर होता है, मैं वैसे बन गई। to this life that was leading to death. ऐसे जीवन में मैं बंधन में पड़ गई जो मौत की तरफ जा रहा था, Because I didn't know Jesus. क्योंकि उस समय में प्रभु यीशु को नहीं पहचानती। One day, एक दिन I was working with some producers in the music studio. मैं कुछ प्रोड्यूसर लोगों के साथ काम कर रही थी स्टूडियो में, And we finished recording music in the studio. और जब वो स्टूडियो में म्यूजिक का रिकॉर्डिंग बंद हो गया था, काम खत्म हो गया, And all of a sudden the building shook. और अचानक से मुझे महसूस हुआ कि वो इमारत हिलने लगी, And I heard hundreds of male voices. और मैंने बहुत सारे 100 से ज्यादा ऊपर लोगों की आवाज, आदमी लोग की आवाज सुनी, And all it sounded like was, और जो आवाज मुझे सुनाई दी उस समय कुछ ऐसे थी, if you can imagine this, क्या आप इस चीज की कल्पना कीजिए, hundreds of male voices और ऐसे हजारों लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी, और सब आदमी पुरुष लोगों की आवाज थी, going, "Kerabashakatasira makurabaya balalaye." I was scared. My spirit shook. मैं बहुत ही डरी हुई थी और मेरी आत्मा से मैं हिल गई थी, The building even shook. इमारत हिल रही थी, And I was like, what earth was that? और मैं कह रही थी कि ये क्या हो रहा है, Has World War III broken up downstairs? क्या यहाँ पर एक भूकंप आया है। And these men, they started laughing at me. और जो प्रोड्यूसर थे मेरे साथ वो सब लोग हंसने लगे। They said, no, they're praying. नहीं, यहाँ पर वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। And I said, I've never heard anybody pray like that before. और मैंने कहा कि मैंने ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी है। They were speaking in tongues. वह आप समझ सकते हो अन्य भाषा They में। were baptized in the Holy Spirit. उन सबको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल चुका था। Anyway, not long after that, और कुछ समय के बाद I was invited to church. मुझे उन लोगों ने कलीसिया में स्वागत किया था। It was the most scariest time of my life. और मैं उस समय बहुत डरी हुई थी। I fell into a deep, dark depression. मैं एक डिप्रेशन, एक बहुत ही मेरे मन में I was lost, confused, and empty. बहुत एक निराशा में पड़ गई थी।
I was lost, confused, and empty. मैं गुमराह हो गई थी, मैं खाली थी और एकदम खाली हो गई थी। But the day that I was invited to church लेकिन जिस दिन मुझे कलीसिया में बुलाया गया था was the day that changed my life around. और उस दिन मेरा जीवन हमेशा के लिए परिवर्तन हो गया। Because I had an encounter क्योंकि मुझे एक खास मिलाप हुआ था with the true and living God. एक जीवित और सच्चे परमेश्वर के साथ। And the day I walked into church, और जिस दिन मेरा पहला कदम उस कलीसिया के अंदर गया, people were praising the Lord. सब लोग प्रभु यीशु की प्रशंसा कर रहे थे। They were worshiping the Lord. और प्रभु की आराधना कर They रहे were थे dancing. और सब लोग नाच रहे थे। And the day I walked in, I felt His presence. और जिस दिन मेरे अंदर मेरे कदम गए, मैंने प्रभु यीशु की उपस्थिति को महसूस किया। And Jesus touched me that day. और उस समय और उस दिन प्रभु यीशु ने मुझे स्पर्श किया। And I knew that He was real. और तब मुझे महसूस हुआ कि हाँ, यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर और जीवित परमेश्वर है। The emptiness that I felt, जो खालीपन मेरे अंदर था, the confusion that I felt, जो निराशा मेरे अंदर थी, He filled me up with His Holy Spirit. यीशु मसीह ने अपने पवित्र आत्मा के साथ मुझे भर दिया। He delivered me from addiction. मुझे हर एक बुरी आदत से छुटकारा दिया। He set me free from the prison that I was in. मुझे उस जेल और बंदगी से मुझे छुटकारा दिया। He came into my life to live. प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए और मेरे साथ रहने And He turned my life around. और प्रभु यीशु ने मेरे जीवन को घुमा दिया। And He can turn your life around और वो today. आपका जीवन भी घुमा सकता है। Hallelujah. No matter what your situation. Hallelujah. No matter what your situation is today. चाहे आपका परिस्थिति ना कुछ भी हो सकती है। Whatever pain you're going through right now. जो भी दर्द और जो भी तकलीफ आप महसूस कर रहे हैं, Whatever confusion you're going through. जो भी निराशा आपके जीवन में है, Whatever hurt you're going through. जो भी संकट जो आपके ऊपर है, What if you're addicted to anything? चाहे आपको किसी भी चीज की The बुरी Lord आदत can है, set you free. परमेश्वर आपको छुटकारा दे सकता है। The Lord can heal you. प्रभु यीशु आपको चंगाई दे सकता है। The Lord can resurrect your dead situation. प्रभु यीशु आपकी परिस्थिति को पुनर्स्थान दे सकता है। Hallelujah. हालेलुया। I just want to give you an opportunity tonight. आज रात में आप सबको एक मौका देना चाहती हूँ। If you were saying that is me, अगर आप कहना चाहते हो कि हाँ यह मैं हूँ, if you don't know the Lord Jesus tonight, अगर आप प्रभु यीशु को आज तक आपने जाना नहीं है, ना तो उसको उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया है, if you've never accepted Him into your heart, अगर आपने उसे अपने जीवन में नहीं बुलाया है, and you were saying, I can't take this pain anymore, और आप कहना चाहते हो कि मैं इस दर्द से, इस जीवन से तंग आ गई हूँ या आ गया हूँ, I can't take the hurt anymore, मुझे ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, I can't take the confusion anymore, ये जो निराशी है और मेरे मन में जो भी तकलीफ है मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। I feel like giving up right now, मेरी यह इच्छा है कि मैं हर एक चीज से त्यागूं I need a turnaround in my life, और मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में एक परिवर्तन आ जाए। I need a Savior in my life, मैं एक मुक्तिदाता परमेश्वर को चाहता हूँ, I need help. मुझे मदद चाहिए। Then I'm here to tell you tonight तो आज मैं कहना चाहती हूँ आपको that the Lord Jesus is here, कि प्रभु यीशु यहाँ पर मौजूद है, and if you don't know Him, और अगर आप उसे अब तक नहीं पहचानते हो, He wants to come into your life वो आपके जीवन में उसके अंदर आना चाहता है and give you the free gift और वो आपको ये एक मुक्ति का वरदान देना चाहता है of eternal life, और अनंत काल का जीवन देना चाहता है, so that you can be born again. क्योंकि वह चाहता है कि आप एक नई रीति से आपको एक नया जीवन मिले, You can receive the breath of God, आपको परमेश्वर का श्वास मिले and your situation will be resurrected. और आपकी परिस्थिति पूरी तरह से उसे परिवर्तन बन जाएगी। So if you're saying that's me tonight, और अगर आप कहना चाहते हो कि हाँ आज मैं वही इंसान हूँ I want to accept Jesus into my life, और मैंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया है, I want to pray for you. हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। And if you're saying I want to accept Jesus into my life for the first time, और अगर आप ये भी कहना चाहते हो कि पहली बार मैं प्रभु यीशु को स्वीकार करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, I want to ask you to stand to your feet right now. आप कृपया अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। You've never accepted Jesus in your life. ये सिर्फ बुलावा उन लोगों के लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु को कभी स्वीकार नहीं किया है। Only if you're doing this for the first पहली time. बार जो भी लोग पहली बार करना चाहते हैं, कितने लोगों ने उद्धार पाया है? आप बैठ जाइए। जो भी लोग पहली बार करना चाहते हैं कृपया कह जाइए।
Okay. Okay, everybody that just stood for the first time to accept Jesus into their life, just जो पहली बार प्रभु यीशु को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं कृपया आप क्या करें पहली बार and I'm going to pray for those that just accepted the Lord. और हम आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं And then there'll be opportunity after for people और to फिर come and pray. बाकी लोगों के लिए भी हम सब लोग के लिए प्रार्थना करेंगे So, I'm going to lead you in this prayer. If you want to accept Lord Jesus into your life right now, तो हम एक प्रार्थना करने वाले हैं जो यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में स्वीकार करना चाहते हैं I want you to repeat this prayer as your eyes are closed. और जैसे हम अपनी आंखों को बंद करते हैं Everybody else just stretch your hands towards them, please. बाकी लोग इनकी तरफ अपने हाथ उठाइए और भाई बहनों जिन लोग जो ठहरे हुए हैं जो प्रार्थना हम करने वाले हैं आप हमारे पीछे दोहराइए सिर्फ जो लोग ठहरे हैं ऊपर जो खड़े हुए हैं Say, Lord Jesus, आप मेरे पीछे कहिए प्रभु यीशु I believe that you are the Son of God. मैं विश्वास करता हूँ आप परमेश्वर के बेटे हैं I believe that you died on the cross for me मैं विश्वास करता हूँ आपने क्रूस पे अपनी जान दे दी है and you rose again. और अब आपका पुनरुत्थान हुआ है Lord Jesus, प्रभु यीशु I ask you to forgive me मैं आपके अपने पापों की क्षमा मांगता हूँ for all my sins, जो भी पाप मैंने किए हैं and I ask you to come into my life और मैं मांगता हूँ कि आप मेरे जीवन में आइए so that I may know you जैसे कि मैं आपको जानूं as Lord and Savior. मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में Okay, I'm going to pray for you now. So, Lord Jesus, I thank you for each and every person that's given their heart to you right now, Lord Jesus. Father God, as you've heard their hearts, as they've accepted you into their life, Lord, I pray that you'll come into their life right now in a mighty, powerful way, Father God. You'll come into their life right now and they will know you as Lord of Lords and King of Kings in your mighty name. Hallelujah. Come on, give them a clap, everybody. Hallelujah.